Assalamu alaikum. Dear students, I am Tanveer Beo, your teacher. Today, I am going to discuss with you vocabulary. Vocabulary, the words started from 41 to 80. Dear students, you know vocabulary is an important topic in entry test. All entry tests, and you have to prepare it very well. So before me, in the previous lecture, our worthy professor Moinul Hassan told you how to build vocabulary, how to use, how to make and break words to find the meanings, and you have to use all those tips and tools during these words as well. So let us start. I will read out some words, I will tell their synonyms, I will tell their antonyms, I shall read out some sentences, images are there. So you have to use both your listening ability and seeing ability and learning ability, and all of you have that very well, because you are going to do a very important job of entry test, and your hard work will help you achieve your target. Let's start, dear students. Yes, dear students, this is word number 41, dilapidated. Dilapidated means decrepit, run down, derelict, ramshackle, tumble, ruin, destroyed, तबाहाल. असल इसका मतलब है तबाहाल, शिकस्ता. इज इट क्लियर? और जाहिर है कि एंटोनिम्स में होगा नाइस बिल्ट, रिकंस्ट्रक्टेड, साउंड, स्टेबल. All these things, the image is also showing you. The sentence completion, the old house was in somewhat decrepit and. अब इस लफ्ज़ में decrepit and decrepit and. Dear students, vocab में while sentence completion and vocabulary, you must remember that and is a sports signal word. And same thought, what type of word is there? Same word should be here. Here is decrepit, and the similar shaded word should be there. So same word will be used here, decrepit and dilapidated condition. Number 42, disconsolately. Dear students, it is adverb. ly वाले words ज़्यादातर adverbs होते हैं, और its meaning is sadly, unhappily, dolefully. Dolefully का मतलब भी अफसुर्दगी के साथ है. woebegone, dejected, downcast, downhearted, dispirited. तो ये सारे वर्ड जो हैं इसी शेड के मीनिंग है. इसके एंटोनिम्स में expectantly, heartily, cheerfully, खुशी के साथ, happily, mirthfully, ये वर्ड्स आएंगे. और सेंटेंस देखें, द प्लेयर्स वर, सेम वर्ड यूज होगा डिस्कॉन्सोलेट आफ्टर. यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है ये, तो डिस्कॉन्सोलेट यूज होगा आफ्टर. सो दिस इज हाउ वी शैल डील इट. रिमेंबर जी, मायूसी के साथ, अफसुर्दगी के साथ, सॉरोफुली, सैडली, ग्लूमिली, ये सब इसी शेड के वर्ड हैं और इसके सिनोनिम्स हैं. होप यू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वन, डेलिकेटली. डेलिकेट. So this word has been made from delicate, which is an adjective, and now it is adverb here, delicately, and its synonyms are, मतलब उर्दू में इसका मतलब हो गया उम्दगी से, नफासत के साथ, नज़ाकत के साथ. और synonyms में देखें, carefully, precisely, skillfully, dexterously. dexterously का मतलब भी बड़ी महारत के साथ है. और elegantly, daintily, dainty आपने पढ़ा था, ये भी आएगा. nicely, attractively, tactfully, sensitively. So these are all the words which mean the same. इसके एंटोनिम्स आ भी सकते हैं, और आपको वैसे ऑप्शन में जो ऑप्शन दी जाती है वहाँ पे होता है, इसके लिए बताए जा रहे हैं. एक्सप्लोसिवली, जाहिर है कि उसका मतलब नफासत के साथ, इसका मतलब हंगामे के साथ. स्ट्रेनवसली, विगरसली, स्ट्रांगली, ये इसके एंटोनिम्स हैं. सेंटेंस को देखें ज़रा. ही स्टेप्ड daintily over the broken glass. broken glass है तो कॉज है कि आप जोर से पाँव नहीं रखेंगे, बड़े आहिस्ता से, नफासत तौर के साथ और एहतियात से रखेंगे. So come to next word, dank. Dank means damp, chilly,
wet, moist, moisture laden, humid, नमी वाला। ये आपने इसमें मिस्टर चिप्स में इस तरह के कई वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। ऑप्शन में इसके एंटोनिम्स में वार्म, उसका मतलब जो है नमी वाला है, गीला है, तो इसका मतलब वार्म, डस्टी, ड्रॉटी, वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट, डिहाइड्रेटेड, वाटरलेस, एरिड। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। और सेंटेंस को देखें जरा। When they came out of the dash cave, their clothes were drenched. तो ये दूसरा हिस्सा है, their clothes were drenched, ये हमें सपोर्ट कर रहा है कि उनके जो कपड़े थे they were damp, नमी वाले, गीले। नेक्स्ट वन, disguise। disguise का मतलब होता है भेष बदलना, verb है, and its synonyms are camouflage, conceal, hide, cover up, mask, screen, वेल, क्लोक, मुंह के ऊपर कोई नकाब पहन के अपने आप को छुपा लेना। एंटोनिम्स जाहिर इसके उल्ट होंगे, डिक्लेयर, लीक, टेल, एक्ज्यूम। एंड एक्ज्यूम का मतलब होता है अनर्थ बताना किसी चीज को। सेंटेंस कंप्लीशन को देखें। द हाईजैकर्स वर इन हैवी डिस्गाइज। तो हाईजैकर्स जो थे वो उन्होंने बेस बदला हुआ था। सो दैट नो बॉडी कुड रिकॉग्नाइज देम, सो दैट बता दिया गया ताकि उन्हें कोई ना पहचान सके। ओके डियर स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट वन। 46, डेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया फिक्स्ड, सर्टन। सिनोनिम्स में श्योर, फिक्स्ड, फाइनल, एग्जैक्ट, अनएम्बिगुअस, एक्सप्लिसिट, एक्सप्रेस, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। कुछ एंटोनिम्स भी देखते हैं। वेग, ड्यूबियस, ओपन एंडेड, अनफिक्स्ड, अनक्लियर, ओपन एंडेड, इंडेफिनिट। सेंटेंस कंप्लीशन में देखते हैं इसका यूसेज। इंस्टेड ऑफ परवेरिकेटिंग, फैब्रिकेटिंग होता है इसका मतलब। प्लीज गिव मी अ डेफिनेट आंसर, कि मुझे प्रॉपर जवाब दो। डेफिनेट यूज होगा डियर स्टूडेंट्स। कम टू नेक्स्ट वन, एन्चेंटेड। एन्चेंटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, कैप्टिवेटेड। एडजेक्टिव भी है, और अगर एज अ वर्ब यूज होगा तो ही वॉज एन्चेंटेड। और एडजेक्टिव में कैप्टिवेटेड, चार्म्ड, डिलाइटेड, dazzled, enraptured, enthralled, beguiled, bewitched, spellbound, spellbind, ensnare, ensnare और अपने जाल में फंसा लेना। तो ये fascinate, ये सारे वर्ड्स इसका सिनोनिम है। एज अ वर्ब आए तो वर्ब करेंगे, एज एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के लिहाज से देखेंगे। एंटोनिम्स में disappointed, disgusted, sickened, repulsed, offended। सेंटेंस चेक करें। दे वर एन्चेंटेड बाय, और इसकी प्रेपोजिशन होती है बाय। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नॉट ओनली रिमेंबर these words, and you have to use certain prepositions as well. When these are used as a verb, certain prepositions are fixed. When used as adjectives, certain prepositions are used. Enchanted by the pleasant afternoon in the autumn, किसी चीज से impress हो जाना। Next one, 48, encouraged, very easy word. अब एज अ वर्ब होगा तो ही encouraged me, हौसला अफजाई करना। इज इट क्लियर? पॉसिबल ये वर्ब के तौर पे ही यूज होगा, इसका एडजेक्टिव हम नहीं बनाएंगे। फोर्टिफाइड, हार्टन्ड, इनविगोरेटेड, एडजेक्टिव भी हो सकता है किसी हद तक। चीयर अप, अपलिफ्टेड, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, सो स्टिमुलेटेड, एनिमेटेड, इनविगोरेटेड। एंटोनिम्स, ग्लोमिंग, mournful, drained, pessimistic, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। सेंटेंस पे आए। In 1933-2000, while the Turkish 5-year plan inaugurated in 1934 encouraged heavy industry। टेक्सचुअल है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट वन, 49, fringed। Fringed, dear student, it is having a strip hanging threads। आमतौर पे लेडीज के ड्रेस के साथ जो इस तरह की एक्स्ट्रा झालर जो लगाई जाती है एक्स्ट्रा डेकोरेटिव पर्पस के लिए, उसको कहते हैं। और एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब उसकी सराउंडिंग भी है,
bordered, borderlined, margined, rimmed, outraged, तो ये इसके एज एडजेक्टिव सिनोनिम होंगे. इज इट क्लियर? और जॉइंट, मार्च्ड, टच्ड, उसके साथ कनेक्टेड. फ्रिंज्ड बेनिफिट्स विल बी गिवन टू यू. ये वर्ड्स भी यूज होता है कि आपके साथ इस जॉब के साथ कनेक्टेड बाकी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे. एंटोनिम्स में स्मूथ, अनएडॉर्न्ड, अनडेकोरेटेड, अनबॉर्डर्ड. सेंटेंस कंप्लीशन देखें. wanting to add flair to the pillows, the seamstress chose to add fringed borders. उसके साथ झालर एक्स्ट्रा लगाई गई. ओके, नेक्स्ट वन exude. ex वाले लफ्ज जो होते हैं, ex का मतलब होता है बाहर, जिस लफ्ज के साथ जैसे एक्सपोर्ट, exhume, exude. तो इसमें हमने देखना इसका मीनिंग. गिव ऑफ, गिव आउट, डिस्चार्ज, रिलीज. मैंने जैसे आपको बताया था कि इस सेंस में यूज होता है. सेंड आउट, सेंड फोर्थ, एमिट, इश्यू, स्वेट. खासतौर पे एक्स्यूट का मतलब एक्स्यूट अ स्वेट, पसीने वगैरह को बाहर निकालना. एज अ वर्ब भी है, इसका सिनोनिम में आएगा. पसीना निकलना है किसी चीज को एक्सक्लूड. एंटोनिम्स में सॉकिंग अप, जज्ब करना. एनग्रॉस, एब्जॉर्ब, जज्ब करना, ये बाहर निकालना. और एंटोनिम एब्जॉर्ब. सेंटेंस कंप्लीशन को चेक करें. व्हाइट एंड पिंक peonies exude an enchanting fragrance. फूलों का जिक्र है कि जनाब वो गिव आउट, स्मेल देते हैं. नेक्स्ट वन एक्सेंट्रिक, वेरी कॉमन वर्ड. याद है नॉर्मा वाला चैप्टर, एन एक्सेंट्रिक मिलीनियर, तो अनोखा, अजीब. तो सिनोनिम्स में इसके अनकन्वेंशनल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, इर्रेगुलर, एबेरेंट, anomalous, odd, queer, strange, peculiar, bizarre. तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स होंगे. एंटोनिम्स में कन्वेंशनल, एक्टिविस्ट, यूजुअल, नॉर्मल. जुमला याद है नॉर्मल वाला? An eccentric millionaire was playing. Let's see what is the sentence here. His incoherent talk suggests that he's some kind of an eccentric. उसकी इनकोहेरेंट टॉक साबित कर रही है कि ये कुछ अजीब खपती है, समथिंग डिफरेंट करना चाह रहा है. नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, इट इज वर्ड नंबर 52. एक्सकर्शन. एक्सकर्शन किसी भी शॉर्ट जर्नी या ट्रिप को कहते हैं. ट्रिप, आउटिंग, जॉन्ट, एक्सपीडिशन, जर्नी, टूर, रैम्बल. डे आउट, बेबी डे आउट सुना था आपने? डे आउट का मतलब भी छोटा सा ट्रिप है. एंटोनिम्स में होम स्टे या स्टे होम, जो आजकल यूज कर रहे हैं. वी गो आउट फॉर रेगुलर वीकेंड. एक्सकर्शन, सेंटेंस में एक्सकर्शन लगेगा. नेक्स्ट इलेबोरेट. इलेबोरेट जो है ये वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ यूज हो सकता है. उन्होंने कहा था इलेबोरेट, इन डिटेल, मतलब इन डिटेल एक्सप्लेन करना, तफसील बताना, ये एज अ वर्ब यूज होगा. और एज अ एडजेक्टिव जो है डिटेल्ड, एक्सपेंडेड, नरेटेड, रिलेटेड, नोन. ठीक है, तो दोनों सेंस में इसके अपने सिनोनिम्स जो हैं याद रखने. डाइवर्ज, रिपोर्ट, पोर्ट्रे, रिसाइट, ऑर्नेट, इम्बेलिश्ड. एंटोनिम्स में कॉन्डेंस, उसको शॉर्ट करना. सेंटेंस चेक करें. द एलैबोरेट मोड्स ऑफ एड्रेस. याद रखने इस तरह के वर्ड्स जो टेक्सचुअल सेंटेंसेस हैं, एग्जाम में आते हैं. जो लफ्ज है उसका सेंटेंस आपको याद रहना चाहिए. मुस्तफा कमाल का सेंटेंस है. नेक्स्ट वन एक्सैस्पिरेशन. एक्सैस्पिरेटिंग टोन तो आपने पढ़ा था. एक्सैस्पिरेशन उसी से बनने वाला नाउन है और इसका मतलब होता है इश्तियाल, गैज़ो गज़ब, इरिटेशन, एनॉयंस, शैग्रीन, वेक्सेशन, एंगर, फ्यूरी, रेज, wrath, स्प्लीन, पीक, इंडिग्नेशन, रिजेंटमेंट. ये सिनोनिम्स हो गए. और एंटोनिम्स में जाहिर है कि ऐसे एंटोनिम्स जिसका मतलब पुरसकून होगा, कामनेस, रिपोज, रिलैक्सेशन, ये एंटोनिम्स होंगे. ऑन सेंटेंस चेक करें. ऑन सीइंग द रेस्टोरेंट बिल, द डाइनर फेल्ट अ स्पेल ऑफ. लो जी, बिल इतना ज्यादा था तो जाहिर है कि अ स्पेल ऑफ एक्सैस्पिरेशन एज अमाउंट वाज टू हाई. कॉज भी बता दी गई है. नेक्स्ट वन एक्सपेंसिव. एक तो होता है एक्सपेंसिव, ये कौन सा है? एक्सपैंड से निकला है, फैलना, उसी से निकला है. एक्सपेंसिव जो ज्यादा फैला हुआ हो. तो इसमें आलीशान भी इसका मीनिंग होगा.
इंग्लिश में सिनोनिम्स है वाइड, स्प्रॉलिंग, वास्ट, रेंजी, वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव ये हो गए, कैपेशियस जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी, एक्सपेंस वसत वाला जिसके अंदर ज्यादा चीजें समा सकें। और एंटोनिम्स में इसमें जो है कॉन्साइज, ठीक है, ये इसका एंटोनिम्स होगा। इट क्लियर? लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, ये एंटोनिम्स होंगे। सेंटेंस देखें, ही ओपनड हिज आर्म्स वाइड फॉर अस इन अ जेस्चर ऑफ वेलकम। ही ओपनड हिज आर्म्स वाइड फॉर अस। इज इट क्लियर? एक्सपेंसिव फॉर अस, expansive for a gesture of welcome. Okay, next one, exaggeration. Exaggeration, exaggerate से निकला है, overstate, किसी चीज को, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, मुबालगा आराई इस्तेमाल करना। सिनोनिम्स में क्योंकि exaggeration नाउन है, नाउन से ही रेलेवेंट सिनोनिम्स हम देखेंगे। ओवरस्टेटमेंट, ओवर एम्फेसिस, मैग्निफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, एग्रेंडाइजमेंट, तो ये इसके कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में किसी चीज को मुख्तसर करके पेश करना, मिनिमाइजेशन, लेसनिंग, अंडरस्टेटमेंट, डिक्रीज। सेंटेंस व्हेन माय ब्रैगर्ट फ्रेंड, लो जी शोखा भाई, शोखिया मारने वाला, वाज टेलिंग हिज सैलरी इन एक्सॉर्बिटेंट फिगर्स। एक्सॉर्बिटेंट, एक्सेसिव, ऐसी जो बंदे को यकीन ही ना आए। We all knew that it was nothing but क्या था? exaggeration, वो बालगा रही। नेक्स्ट, evaluates, वर्ब के साथ इस दफा यूएचएस ने इवन के कुछ वर्ब्स के साथ प्रेजेंट एस में, किसी के साथ ईडी, तो इसी तरह से उन्होंने बनाया, इसी तरह से हम इनको करेंगे जिस अंदाज में उसने दिया है। शायद वो चेक करना चाह रहा है कि किस एंगल से स्टूडेंट्स याद करते हैं, ठीक है। तो तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना, assesses, apprises, gauges, estimates, calculates, ये इसके synonyms हो गए। और ignore और notice antonyms हो गए। Our research meticulously evaluates the effectiveness. Evaluates लगेगा dear students। Next one, 58, fatality, fatal से निकला है, fatality noun है, is it clear? और death caused by accident, किसी भी इत्तफाकन मौत को fatality कहा जाता है। ऑप्शंस देखें, डेथ, कॉजुअलिटी, मॉर्टेलिटी, ये वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, विक्टिम, लॉस, डेड। नेक्स्ट इसका जो है फेटेलिटी का एंटोनिम जो है वो होपफुली हम कह सकते हैं, ठीक है। सेवरल पीपल वर इंजर्ड बट देयर वाज नो फेटेलिटी, कोई डेथ नहीं थी। 59, फ्लिक्ट, टू मूव और हिट समथिंग विद द शॉर्ट सडन मूवमेंट। आमतौर पे अगर क्रिकेट की टर्म में आप देखें तो आप कहते हैं बैट्समैन फ्लिक्ड, आहिस्ता से वो बॉल को जो है तेज और अचानक झटके की मदद से बॉल को उसकी डायरेक्शन टर्न करता है, डेट इज कॉल्ड फ्लिक्ड। जर्क्ड, तो जर्क्ड, स्नैप्ड, स्ट्रोक्ड, ब्रश्ड, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम्स में आप ना भी डिस्कस करें, ठीक है। टच्ड हो सकता है, जेंटली हो सकता है। Okay, sentence, there was no need for hard hit, so the striker slightly the ball into the, slightly flicked, आहिस्ता से flick कर देना। Next word, 60, flawlessly, flaw कहते हैं fault को, flawlessly adverb हो गया, इसका मतलब है perfectly, stainlessly, impeccably, immaculately, faultlessly, clearly, soundly। और एंटोनिम्स में imperfectly, poorly, badly, wrongly। सेंटेंस कंप्लीशन चेक करें, तो डांस रूटीन वाज सो flawlessly executed, कितने मुकम्मल अंदाज से उसको कंप्लीट किया गया था, that nobody could find any fault। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 61, फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन साइंस स्टूडेंट्स हैं, यू नो इट वेरी वेल, the force that makes it difficult for some object to slide, रगड़ की ताकत को कहते हैं। abrasion, abrading, rubbing, chafing, ये इसके सिनोनिम होंगे। और इसके अलावा अगर टू पर्सन्स के दरमियान तो फ्रिक्शन जो है वो एक नागवारी की कैफियत के, जब बंदे के ताल्लुकात ठीक ना हो, मसलन देयर इज अ डिस्कॉर्ड, एक होता है हम आहंगी, एक होता है आहंगी ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, डिसहार्मनी, डिसयूनिटी, स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट। तो इस एंगल से भी इसके सिनोनिम्स आपने दोनों एंगल से याद रखने।
वो जो साइंस में वाली फ्रिक्शन है, फिजिक्स वाली, वो भी, और इंग्लिश वाली भी याद रखनी है। और एंटोनिम्स में स्मूथनेस, एकॉर्ड, प्लेजर, कोऑपरेशन। एकॉर्ड का मतलब भी अंडरस्टैंडिंग है, लव। सेंटेंस चेक करें। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स हैड कॉज्ड द इंजन टू ओवरहीट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन 62, फ्लटर्ड। फ्लटर्ड डियर स्टूडेंट्स, टू मेक सीरीज ऑफ क्विक डेलिकेट मूवमेंट्स। फड़फड़ाना, खासतौर पे परिंदों का अपने परों को फड़फड़ाना। फ्लैप्ड वर्ब है, इसके बीट, क्वीवर, एजिटेट, वाइब्रेट की सेंस में भी यूज होगा, ट्विस्ट उस सेंस में भी यूज होगा ये, क्रैश। और काम, सूद, स्टडी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। फ्लैग्स, फ्लटर्ड इन हैवी, द बर्ड फ्लटर्ड इट्स विंग्स, अपने परों को फड़फड़ाना। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स 63, जिंजरली। जिंजर जाहिर है आपको पता है एडवर्ब हो गया, जिंजरली एलवे लग गया। कॉशियसली, केयरफुली, डेलिकेटली, वेरीली, चेरीली, प्रूडेंटली, अटेंटिवली। और एंटोनिम्स में इनकॉशियसली, नेग्लिजेंटली, अनमाइंडफुली, रफली। सेंटेंस पढ़ें। द कॉशियस वर्कर ओपन द बॉक्स gingerly and looked inside, ध्यान से खोला है। नेक्स्ट वन, यस डियर स्टूडेंट 64, glistening। आईएनजी वाले वर्ड्स या तो एडजेक्टिव होते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आईएनजी वाली फॉर्म लगी होती है। दोनों सेंस में हमने इसके एज एडजेक्टिव यूज हो तो उसके एडजेक्टिव सेंस में मीनिंग देखना है, और अगर जो कॉन्टिन्यूस सेंस में होता है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो उस हिसाब से देख लेना है। ओके, उर्दू में शाइनिंग, चमकीली, भड़कीली, उसको कहते हैं। और सिनोनिम्स में हम इसके शाइनिंग, स्पार्कलिंग, ट्विंकलिंग, ग्लिटरिंग, ग्लिमरिंग, ग्लोइंग, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। और एंटोनिम्स में ऑब्सक्योरली, एक तो होता है ना, मतलब शोही से, एक होता है ऑब्सक्योरली, डिमली, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और सेंटेंस चेक करें कंप्लीशन में। हिज ऑयल्ड बार्ड हेड वाज, लो जी, एक तो गंजा और ऊपर से सर चमक रहा है, फिर क्या होगा? इन द सनशाइन, ग्लिसनिंग, शाइनिंग। नेक्स्ट वन, ग्लेयर्ड। ग्लेयर्ड, नॉर्मा ग्लेयर्ड एट द कर्टन, याद आ गया, यूं कॉन्स्टेंटली घूर कर देखना। इज इट क्लियर? और वर्ब है ये ग्लेयर्ड। स्काउल्ड, फ्राउंड, माथे पे बल और बड़े उसके साथ एंग्री लुक अंदाज में देखना। स्काउल, ग्लोअर, ग्लीम्ड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स में स्माइल्ड, ये इसका एंटोनिम हो गया जी। ओके, नेक्स्ट वन, ग्रॉगी। ग्रॉगी आ गया, पहले भी डिस्कस हो चुका है ये किसी सेंटेंस कंप्लीशन में, पिछली दफा एग्जाम में आया था और इसने काफी बच्चों को उड़ा दिया। ठीक है, इसका मीनिंग अच्छी तरह समझना है जी। वीक एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली और वॉक करेक्टली बिकॉज ऑफ टायर्डनेस और इलनेस, खास तौर पे ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू ड्रग्स एंड सच मेडिसिन विच आर इंटॉक्सिकेटिंग, नशावर अद्वियात, आमतौर पे ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को जो दी जाती हैं एनेस्थीसिया वगैरह, उसके बाद पेशेंट ही कांट फील, नीम मदोशी की हालत, होश में आ जाना लेकिन सही तरह से, तो ये इसका मीनिंग है। डेज्ड, स्टूपिफाइड, ये इसमें फडर्ड, मडर्ड, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में क्लियर, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट जो बड़ा अच्छी तरह से पहचान सके, अवेयर हो हर चीज से, होशो हवास में हो। स्टेबल, आमतौर पे डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट स्टेबल हो गया है, अब इसे डिस्चार्ज कर दें, तो स्टेबल इसका एंटोनिम है। सेंटेंस पे आ जाएं। द स्लीपिंग पिल्स लेफ्ट हर। स्लीपिंग पिल्स, जाहिर है कि सोने उनमें नशावर होता है, इंटॉक्सिकेटिंग होती हैं। हर वेरी ग्रोगी, याद रहेगा जी, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया, उम्मीद है याद रखेंगे क्योंकि ये आ चुका है। बाकी लफ्ज को भी, हर लफ्ज को ये समझ के सुने कि ही आना है, और इतने आपके शेड्स हो उसके सिनोनिम्स के, एग्जामिनर जैसे मर्जी आए फिर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज हीप। हीप यू नो एज अ वर्ब एंड नाउन बोथ यूज होगा। ठीक है, इसमें हम जो है पाइल, स्टैक, नॉर्मा वाज स्टैकिंग डिशेस, याद है। माउंट भी होता है, माउंटेन भी होता है, बंडल, जंबल, कलेक्शन। और ऑप्शन में स्कैटर, ढेर लगाना, बिखेर देना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इज इट क्लियर?
I thought, सेंटेंस चेक करें, there would be 1 or 2 books in the room, but there were actually a heap of them. heap, ढेर, pile. समझ लग गया जी. नेक्स्ट वन, hideous. hideous जो है वो जो शक्ल जिसकी देखते बंदे को घिन आए, ugly, disgusting, unpleasant, ऐसी चीज को कहते हैं. तो ugly, disgusting, repulsive, repellent, दिल ना देखने को करे, परे करो यार इसको. grotesque, ghastly, macabre. एंटोनिम्स में डिलाइटफुल, प्लीजिंग, अच्छा लगे जिसको बंदा, प्लेजेंट, काइंड, अट्रैक्टिव, जो नजर को खींचे, जिसको बंदा बार बार देखे. सो सेंटेंस चेक करें. आई वॉज वियरिंग हिडियस येलो ड्रेस. लो जी, येलो ड्रेस हिडियस होता है लेकिन हर किसी के लिए नहीं. नेक्स्ट वन, हैबिटेट. हैबिटेट किसी भी चीज के नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसकी लिविंग प्लेस को कहते हैं. बायो के स्टूडेंट्स बड़ी हैं, आप अच्छी तरह समझते होंगे. तो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, कोई नेचुरल सराउंडिंग हो गया, टेरिटरी होगी, होम. होम इसका सिनोनिम है. ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट. डोमेन, हॉन्ट, अननेचुरल सराउंडिंग, तो ये जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा. तो सेंटेंस चेक करें. मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल इज कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल ह्यूमन हैबिटेट. जी नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको वोकैब को करते हुए ऐसा नहीं फील करना कि कितने हैं, हाँ बस सुनते जाएं, इंशाल्लाह सुनने से ही क्लियर हो जाएगी. हैगर्ड. हैगर्ड और ग्रोगी, ये जिस तरह से आप वर्ड्स कंप्लीट करते जाएंगे, बाद में आपने इनके पेयर्स बनाने हैं जो मैचिंग सेम सेंस है, जिनके शेडिंग वर्ड्स हैं. ये काम आप पूरे उसके बाद करेंगे. इसका मतलब होता है टायर्ड, डार्क स्किन अंडर द आइज. आमतौर पे मेहनत या काम थकन की वजह से ये होना है. गर्ड में ये है, उसमें मेडिसिन का इफेक्ट था, इसमें फिजिकल एक्सर्शन का इफेक्ट है. इज इट क्लियर? टायर्ड, ड्रेन्ड, एमेसिएटेड, स्केलेटन, कैडेवरस, किसी वजह से ऐसा हो जाना कि पीला रंग हो जाना बंदे का, बिल्कुल शक्ल से बदहाल हो जाना, और वो बंदा लगे कि बिल्कुल कमजोर और थका हुआ है. और इसके एंटोनिम्स में चबी, ठीक ठाक, हट्टा कट्टा, हर्टी, हेल्दी, फ्रेश, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. सेंटेंस कंप्लीशन चेक कर लें. He looked pale and haggard. Pale and haggard. अब ये देखें, दो मैंने आपको पहले भी बताया था कि and, ठीक है, pale and haggard. यही टेक्निक्स हैं जो सेंटेंस कंप्लीशन में एग्जामिनर यूज करता है. यही आपको हम बता रहे हैं, यही आप सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आप ठीक परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट वन, haphazardly. haphazardly, ly आ गया, एडवर्ब है. अनमेथोडिकली, इत्तफाकिया तौर पे. disorderly, irregularly, aimlessly, casually, randomly, और इसके एंटोनिम्स में orderly, systematically, formally. सेंटेंस में vehicles are parked haphazardly on a narrow street, ऐसे अंदाज में कि बंदा ना गुजर सके, तरतीब में. disorderly, chaotically. नेक्स्ट वन इज harmony. harmony पहले भी पढ़ चुके हैं. हम आहंगी, अंडरस्टैंडिंग, एक जैसे, सिमिलर टू हैव सिमिलर थॉट, के एक जैसे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, उसे कहते हैं. इसमें एकॉर्ड, कोहेरेंस, सिमेट्री, यूनिटी, कॉन्सोनेंस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. और एंटोनिम्स में वही डिस्कॉर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा. रिफ्ट आ जाएगा इसके, और फर्दर कंफ्यूजन, टेंशन. ये देखिए कितना आसान लफ्ज़ है, टेंशन. दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है या टेंशन है, इस तरह से हमें इसका मीनिंग सीख सकते हैं. टू लिव टुगेदर इन परफेक्ट इज द क्लाइमेक्स. परफेक्ट हार्मनी. इज इट क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, इट वाज वर्ड नंबर 74, हॉटी. हॉटी होता है अनफ्रेंडली और शोक, जो थोड़ा सा दूसरों को थोड़ा अपने बारे में प्राउड भी फील करे, ठीक है. तो प्राउड, वेन, एरोगेंट एडजेक्टिव है. conceited, snobbish, superior, lofty, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं. और एंटोनिम्स में इसका सबसे पहला एंटोनिम होगा हम्बल, आजिज, इनकसार. मॉडेस्ट, मुनकसर मिजाज जो होता है. जेंटल, शाय. 75 नंबर, हैवक. हैवक का मतलब तबाही, डिस्ट्रक्शन, खराबी, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डेसोलेशन, रुइनेशन, रुइन से, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, ये सारे वर्ड्स इसके.
और बहुत सारे वर्ड्स ये हम लेसन में पढ़ भी चुके हैं। तो जिसने लेसन्स को ध्यान से पढ़ा हुआ है उसको आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और इंशाल्लाह, और इसमें लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो उनके जो सिनोनिम्स होते हैं उनकी शेड्स हमें कंफ्यूज करती हैं। इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट हर लफ्ज के बारे में हर एंगल से क्लियर होना चाहिए कि इसके किस किस एंगल से मीनिंग है, चाहे कितना ही आसान वर्ड क्यों ना हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके एंटोनिम्स में बिल्डिंग, रेस्टोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ग्रोथ, ये पीस, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस चेक करें। द ग्रेव ऑफ हर्बर्ट विथस्टूड द हैवक ऑफ द फ्लड, कि सैलाब की तबाहकारियों को भी उसने बर्दाश्त किया। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, हियर से। हियर से जरा लफ्ज को तोड़ें, हियर सुना और से, कोई बात सुनी है जैसे भी सुनी और आगे अपने पास से सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना, और आमतौर पे ध्यान से सुना नहीं आगे फैला दिया। इट मीन्स गॉसिप, आइडल, रूमर। रूमर इसके लिए प्रॉपर जो है सिनोनिम है कि सही तरह से सुना नहीं। और रिपोर्ट, मियर टॉक, नॉइज भी इसका सिनोनिम में आएगा। और एंटोनिम क्या होगा? प्रूफ, इज इट क्लियर? रियलिटी ये होगा, एविडेंस, सबूत हो किसी चीज का। वी कांट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन हियर से एंड गैस वर्क। अब ये देखो गैस वर्क भी आपके मीनिंग को एक्सप्लेन, किसी चीज को सुन के आगे फैलाना। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स इज इंटेंडेड। इंटेंडेड वर्ब होगा, जैसे ही इंटेंडेड टू बिकम अ डॉक्टर वैसे भी होगा। और व्हाट इज योर इंटेंडेड मिशन, योर इंटेंडेड प्लान, इंटेंडेड, तो ये दोनों तरफ से वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों सेंस में इसके सिनोनिम्स लिखेंगे। डेलिब्रेट, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, कंसिडर्ड, स्टडीड, पर्पसफुल, प्री प्लान्ड, ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो मैंने बोले। और एंटोनिम्स में रैंडम, unintentional. Okay, look at the sentence. The driver had intended to reach his destination. तो intended लग गया। Next one, in vain, as it is combined, in vain use होता है, आपको पता है इसका मतलब जब in vain हो तो फिर होता है बेकार, ठीक है। वैसे तो vain का मतलब प्राउड और ये भी है, लेकिन in vain का मतलब होता है बेकार, मामूली, ट्राइफलिंग, ऐसी चीज जिसका फजूल हो। फ्यूटाइल, यूजलेस, पॉइंटलेस, वर्थलेस, वेनली, तो ऑफ नो वेल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स में यूजफुल, पोटेंट, इफेक्टिव, फ्रूटफुल, ये एंटोनिम्स हो गए। कम टू सेंटेंस कंप्लीशन। शी वेटेड फॉर द ट्रेन डैश एज इट हैड ब्रोकन डाउन एंड रूट, लो जी गाड़ी तो खराब होगी तो उसका इंतजार करना बेकार। इन वेन इज द ऑप्शन हेयर। अगेन इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट से बना है नाउन, इल्यूमिनेट रोशन करना, और इल्यूमिनेशन नाउन है रोशनी। लाइट, लाइटिंग, रेडियंस, ग्लीम, ग्लिटर, ब्रिलियंस। एंटोनिम्स में कलरलेसनेस, डस्क और डलनेस, ग्लूम, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। और सेंटेंस कंप्लीशन में द ओनली इल्यूमिनेशन इन द अदरवाइज डार्क रूम, ये देखें अदरवाइज अगेन अ कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है। अदरवाइज हो गया, आल्दो हो गया, इसके एक तरफ जो लफ्ज लगा होगा दूसरी तरफ उसका हमने एंटोनिम सिलेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर जी? लास्ट, आज का लास्ट है, ठीक है। इनवेरिएबली, एडवर्ब है, वेरिएबल से बना है, इनवेरिएबली, ऑलवेज, इसका सिनोनिम हो गया हमेशा, विदाउट एनी चेंज और रूटीन। ऑलवेज, on very occasion, every occasion, universally. Antonyms हैं infrequently, periodically, seldom, occasionally, usually, rarely. So dear students, आज के 40 वर्ड्स पूरे हो गए। कैसा लगा आपको? मुश्किल तो नहीं लग रहा? एक सिटिंग में आपने 40 वर्ड सुन लिए, लेकिन आपके पास तो अभी ये सहूलत है भाई ने रीप्ले चलाएं, फिर प्ले, फिर आपके पास ये ऑनलाइन में ये ज़्यादा अच्छा चांस है कि आप लफ्ज़ को बार बार सुने, बार बार सुनो, इंशाल्लाह आपके कानों में फिक्स हो जाएंगे। अभी इसके बाद एक और हमने काम करना है, इसके साथ हमें होमोफोन्स भी पढ़ रहे हैं, इनको आसान लफ्ज़ में पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आएँ जी, उनकी तरफ भी चलते हैं, ये भी कुछ आपके एग्ज़ाम में होंगे, ठीक है। ये बस मेंशन्ड नहीं है, लेकिन मोस्टली जो हैं वो यही हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, या जो मतलब इनके बारे में इतना परेशान नहीं होना, वही फर्स्ट ईयर वाले पेयर ऑफ वर्ड्स ही समझें इनको। इज इट क्लियर? हाँ जी, कुछ इससे पहले
हमारे पहले प्रोफेसर आपको पढ़ा चुके हैं, तो मैं आपको एल्डर और ओल्डर से शुरू करूंगा। एल्डर ओल्डर याद है, एल्डर रिश्ते में बड़ा, ओल्डर उम्र में बड़ा, ठीक है। जुमला एक ही बना सकते हैं, माई एल्डर ब्रदर इज 2 years older than I। इस तरह से इनके जुमले बनाते जाएं। डिफरेंस है इसमें। एलिसिट, इलिसिट। एलिसिट होता है अखज़ करवाना, किसी की सिम्पथी या हमदर्दी गेन करने के लिए। हर टीयर्स एलिसिटेड ग्रेट सिंपथी, कि उसके आंसू ने हमदर्दी हासिल की। और इलिसिट, इल जो है वो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जैसे लीगल, इलीगल, लेसिट लीगल और इलिसिट। इलीगल को कहते हैं गैर कानूनी को। इलिसिट ड्रग्स सच एज कोकेन मस्ट बी बैंड। नेक्स्ट, एलिजिबल, इलेजिबल। एलिजिबल किसी भी काम के लिए, सूटेबल, एहल जिसे कहते हैं काबिल, और इलेजिबल, लेजिबल होता है रीडेबल, अगेन illegible which cannot be read, only people over 18 are eligible to vote। और illegible, his signature is totally illegible। next word, eminent और imminent। e वाला eminent होता है वो कोई भी famous, मशहूर, उसको कहते हैं। Ottoman Empire began to decline in the, oh no, let me read this sentence, the commission consisted of 15 eminent political figures। और imminent फौरी, मुतवक्को, एक्सपेक्टेड, a रेन स्टॉर्म was imminent। वो पढ़ा था, locusts will always be imminent like bad weather। नेक्स्ट वन, एम्पायर, अंपायर। ई वाला एम्पायर सल्तनत से निकला है, ठीक है। सल्तनत या किसी की बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टी, उसके लिए भी यूज होता है। द ऑटोमन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन इन लेट 18th century। और यू वाला एम्पायर क्रिकेट वाला होता है, याद रखना है। द एम्पायर्स डिसीजन इज फाइनल। 82, एनवेलप। सो एनवेलप, ये जो एनवेलप है वर्ब है लपेट लेना। द क्लाउड्स एनवेलप द माउंटेन। एनवेलप नाउन है। मिस्टर स्टीवर्ट सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल। एक्साइट, इंसाइट, एक्साइट उभारना जज्बार को। द वंडरफुल रॉनेस ऑफ ह्यूमन इमोशंस एक्साइट्स मिस्टर क्रिस्टन। इंसाइट, दे डिनाइड इंसाइटिंग द क्राउड, किसी को नेगेटिव काम के लिए किसी को इश्तियाल दिलाना। पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंस है ये इसमें। इस तरह से फेन होता है बाय डिजायर, और फेन FEIGN फेन होता है प्रिटेंडेड, दिखावा किया जाने वाला। आई वुड फेन डू सो, कि मैं विलिंगली बाय डिजायर ऐसा करूंगा। और फेन शी फेन मैडनेस, इस तरह का जुमला बन सकता है। फेयर, FAIR फेयर, FIRE फायर, और फेयर। FAIR फेयर जो होता है, एक तो ये होता है कि विलेज फेयर भी होता है मेला, और दूसरा फेयर इसका मतलब साफ भी है। His decision should be Noshirwan. Look at the sentence. He judged animals at a county fair one time. यहाँ पे मेले की सेंस में यूज हुआ है। And his decision should be fair. ये भी fair इसी सेंस में यूज हुआ है। Fire mister beating wanting to fire a pistol, ये आग जलाना भी है और फायर करना, गोली चलाना भी है। फेयर किराए को कहते हैं, ठीक है। ट्रेन फेयर्स आर गोइंग अप अगेन। फेमस, नोटोरियस। फेमस अच्छे काम के लिए मशहूर, नोटोरियस बुराई के लिए, बदनाम, बुरी एक्टिविटी के लिए। मशहूर तो जरूर होता है लेकिन ये बदनाम होता है। नौशेरवान किंग ऑफ पर्शिया वाज फेमस फॉर हिज जस्ट, और इन दोनों के प्रेपोजिशन फेमस फॉर है, नोटोरियस फॉर। द कंट्री इज नोटोरियस फॉर इट्स अपैलिंग प्रिजन कंडीशंस। फार्म और फॉर्म, फार्म खेत को कहते हैं और फॉर्म वही कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फार्दर और फर्दर। FAR जो है फार्दर, फार, ये इसकी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, मजीद आगे, डिस्टेंस के लिहाज से। इज इट क्लियर? मिस्टर चिप सिग्नल्ड अ फ्रेंड फार्दर डाउन, डिस्टेंस के हाल से जो आगे था। और फर्दर होता है वैसे मजीद, ठीक है, मजीद कुछ और अमाउंट में ज्यादा ही। 5 yards further a large Persian carpet attracted his I can't speak further, ठीक है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। फीट, FWT फीट सारे पैरों को कहते हैं, और FEAT फीट जो है वो जादू करतब, मदारी। द जगलर वाज शोइंग हिज फीट। और फीट, नॉर्मा स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉक्ड इनटू द किचन। नॉर्मली अपने पैरों को मुश्किल से हटाना। फ्ली और फ्ली, FLEA फ्ली। इज इट क्लियर?
स्मॉल जो है इंसेक्ट, एक पिस्सू जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं डू यू नोटिस एनी ट्रेस ऑफ फ्लीज। और फ्ली जो होता है वो किसी मैदान जंग से फरार हो जाना, भाग जाना, इस सेंस में यूज होता है, किसी जगह को छोड़ के भाग जाना। द बिटिंग फैमिली फ्ली टू द प्लेनेट मार्स, फ्लीड भाग गई, फ्लेड सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। फ्ल्यू, द बर्ड फ्ल्यू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन। और फ्लू वो जो आजकल चल रहा है, फ्लू की टाइप है, ठीक है, जुकाम, ही इज नॉट कमिंग टू कॉलेज ड्यू टू फ्लू। फ्लोर और फ्लोर, डबल ओवर फ्लोर जो है फर्श को कहते हैं, तो बॉडी वॉज लाइंग ऑन द किचन फ्लोर। और एफोलो योर फ्लोर आटे को कहते हैं। द ब्लेंड ऑफ फ्लोर विद द लिटिल मिल्क टू मेक, ब्लेंड द फ्लोर विद द लिटिल मिल्क टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। फाउल, फाउल और फाउल, FOWL, फाउल बर्ड्स या परिंदों को कहते हैं, मुर्गाबी वगैरह को। आई नाउ ईट मोर फ्लैश एंड फाउल एंड लेस रेड। उसके बाद FOW वाला फाउल जो है ये रॉन्ग है, उसको कहते हैं, ठीक है। देयर इज फाउल। फ्यूनरल, फ्यूनरल और फ्यूनिरल, फ्यूनिरियल जो होता है ये वो तो अफसुर्दा और सैड को कहते हैं। फ्यूनरल जो है वो जनाजे को कहते हैं, फ्यूनरल hundreds of people attended the funeral। और funeral ये होता है अफसोसनाक, sad, gloomy। gate, 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 GAIT, gate and GATE, GAIT gate चाल को कहते हैं। I could always recognize her, brisk gate या gate, please shut the gate। gamble, 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 gamble का मतलब जुआ खेलना, और O वाले का मतलब है jump। lambs were gambling around the spring। jail, ये GAL जेल है, तब castle had been used as a jail। और goal, मंजिल मकसूद को कहते हैं। he headed the ball into an open goal। गोल ये फुटबॉल वाला गोल भी है जी। जनरल और जर्नल, जनरल आम, और जर्नल जो है ये किसी भी डायरी वगैरह को कहते हैं। ही रोट अ जर्नल ऑफ हिज ट्रेवल्स। ग्लास और ग्लोव्स, ग्लास शीशे को कहते हैं, ठीक है। द म्यूजियम हैज अ फाइन कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल ग्लास, और ग्लॉस शाइन, चमक को कहते हैं। द जेल गिव्स यू हेयर अ ग्लॉस। ग्रेसफुल, ग्रेशियस, ग्रेसफुल ग्रेस से भरा हुआ, ठीक है। डॉल्फिन्स आर इनक्रेडिबली ग्रेसफुल एंड एफिशिएंट स्विमर्स। ग्रेशियस, अल्लाह अलमाइटी इज ग्रेशियस। ग्रेट और ग्रेट, ग्रेट अजीम, बड़ा, अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोएट। और ग्रेट ये एक अंगीठी को कहते हैं, फायर बर्निंग को प्लेस को कहते हैं। A huge log fire was burning in the grate। Hair, HAIR वाला हेयर, बाल, HARE हेयर वाला खरगोश, HER हेयर, सुनना, HERE हेयर। हेल, HALE हेल, हेल एंड हार्टी, सेहतमंद, तवाना को कहते हैं। HAIL हेल के दो मीनिंग है। नंबर 1 बोछाड़, झालाबारी, और एक होता है द वी हेल्ड द गेस्ट, वेलकम, चीयर्ड। और हॉल, हॉल होता है द हॉल, शोर करना, तो ओपन, मूव करने में किसी चीज से चलाना। द हॉल द बोट आउट ऑफ द वाटर। हार्ड, हियर्ड और हर्ड, दोनों हार्ड, हर्ड, हर्ड। हार्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, दिस इज अ हार्ड बॉल। और आई हर्ड अबाउट हिज सक्सेस, ठीक है। हर्ड ये जानवरों का रेवड़ या लोगों का काफी बड़ा हजूम अनकंट्रोल, उसे कहेंगे, ठीक है। ऐसा अ हर्ड ऑफ कैटल। हेवन और हेवन, दोनों, हेवन जो है HAVN हेवन, सेफ जगह, ठिकाना जिसे कहते हैं, महफूज पनाहगाह जिसे हम कह सकते हैं, शेल्टर। ऑप्शन सेंटेंस, द गार्डन इज अ हेवन फ्रॉम द नॉइज एंड द बसल ऑफ द सिटी। और हेवन, द आइलैंड इज ट्रूली अ हेवन ऑन अर्थ। हील, हील, HEL हील, जख्म का मुंदमिल होना, भर आना। और HEE हील, पाँव की एड़ी को कहते हैं। हिल, पहाड़ी को कहते हैं। ह्यू, HEU मीन्स कट डाउन, काटना, he hewed a tree। और HUE ह्यू जो है रंग को कहते हैं, शेड को कहते हैं, कलर को कहते हैं। हायर और हायर, हायर हाई की सेकेंड डिग्री है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। और हायर्ड किराए पे लेना, वही हायर्ड है। टैक्सी, ह्यूमैन और ह्यूमन, ह्यूमन और ह्यूमन, ह्यूमन इंसानी को कहते हैं, एडजेक्टिव है। ह्यूमन काइंड को कहते हैं। हंग और हैंग, डियर स्टूडेंट्स, तीनों जो है हैंग की, दोनों हैंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। हंग जब कोई चीज को लटकाई जाती है तो हंग, फांसी देना तो फिर हैंग्ड। आइस, स्नो, आइस जो है वो आर्टिफिशियल होती है, स्नो नेचुरल होती है। आइडल और आइडल, आइडियली आइडल, सुस्त, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग आइडल।
और आइडल वर्शिपिंग बुत को कहते हैं। इमोरल इमॉर्टल गैर इखलाकी और फानी ना फना ना होने वाला इमॉर्टल, ठीक है, अल्लाह अलमाइटी इज इमॉर्टल। इंपीरियल इंपीरियस, इंपीरियल शाहाना कहते हैं और इंपीरियस प्राउड को कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज टुडेज वोकेबलरी। टफ था यकीनन, लेकिन आपने करना है इसको, इंशाल्लाह उम्मीद है आप ठीक करेंगे। कल का टेस्ट जो है वो ठीक होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।